Good morning, student of class 3. How are you? I hope you all are fit and healthy. Welcome back to your EVS class. Today date is 14 December 2020 and I am teaching you chapter number 20, Unity in Diversity. Unity in diversity. So student, take out your book, open page number 107 and take one rough copy also, so that you can note down the important points also. So student, when we are talking about the chapter Unity and Diversity, so before starting the topic, let's do little recapitulation what we have done in our previous video. So student, in the previous video I explained you that India is a big country. Our country India is the seventh largest country in the world. ठीक है, वर्ल्ड में हमारी कंट्री की क्या पोजीशन है? 7th. So a number of and country is divided into 28 states and 8 union territories. So after that I explain you lot of diversity you will see in our country, that is India, because people belonging to different religions are living in the country. Hindu, Muslims, Sikh, Christians, Jainism, Buddhism. So people belonging to different religions are living in different part of the country. And if you want to see the diversity in India, then visit in all the states of India. Is it clear? You will find different cultures of the people living in the different state. आप देखोगे डिफरेंट स्टेट में रहने वाले लोगों के कल्चर्स में भी बहुत डिफरेंस है. उनके रहन सहन का जो ढंग है, तरीके हैं, आपको उसमें भी बहुत डिफरेंस देखने को मिलेगा बेटा. इज इट क्लियर? सो इवन the clothes which they wear, so in different state people wear different types of clothes also, and even you will find changes. You will see changes in their eating habits also. Okay, you can see changes in their
eating habits also. So student, lot of difference you will find. So in this summer vacation, visit with some tourist place with your parents, और whenever you go summer, तो अभी तो दिसंबर चल रहा है, विंटर चल रहा है, आप लोग ने खुद भी देखा होगा, कभी आप अपने समर हॉलीडेज में डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री के किसी पार्ट में गए होगे, तो आप खुद बेटा ऑब्जर्व करते होगे, आप किसी नई जगह पे जाते हो, जैसे हम लोग यूपी में रहते हैं, अगर हम महाराष्ट्र चले गए, हिमाचल चले गए, पंजाब चले गए, तो कुछ चीजें ऐसी हैं जो आपको बोलनी नहीं पड़ेंगी, आप खुद ऑब्जर्व करोगे. लैंग्वेज स्पोकन बाय द पीपल इज डिफरेंट. Way of eating is also changed. Okay, types of clothes which they wear. So these types of things you will observe, that in different state the same people, they are following the different culture. अलग अलग कल्चर, बहुत वैरायटी है इंडिया में बेटा, इंडिया में बहुत वैरायटी है. ठीक है, ऐसे होल कंट्री क्या है, एक है, लेकिन अब पूरी इंडिया अगर आप घूमने का सोचो तो आपको लगेगा लॉट ऑफ डिफरेंस है, बहुत ज्यादा डाइवर्सिटी है, और ऐसा हमारी ही कंट्री में है. इज इट क्लियर? सो एंड आफ्टर दैट I start explaining you lot of difference in the way of living, in the way of eating, wearing the dresses, language spoken by the people. So how we are bind together? Then how we are bind together if there is lot of difference? So that is the reason the name of chapter is Unity in Diversity. इतना डिफरेंस होने के बावजूद भी the people of India, they always stand together for their nation, for their nation. Is it clear? सो इन सब चीजों को आपस में इतना डिफरेंसेस होने के बाद भी आपस को बाइंड करके कैसे रखा है? सो दिस इज हाउ दिस इज पॉसिबल. जैसे माला होती है ना, मोतियों की माला, एक धागे में लगा देते हैं, कितनी अच्छी माला लगती है, वही टूट जाए थ्रेड तो सारे मोती दूर दूर चले जाते हैं. सो सेम ऐसा ही समझो इंडिया में भी, कि इतने ज़्यादा कल्चर, लैंग्वेज स्पोकन है, वे ऑफ ईटिंग है, द टाइप ऑफ क्लोथ्स विच दे वेयर, सो बहुत से डिफरेंट हैं कल्चर में, क्योंकि रिलीजन्स भी बहुत अलग अलग हैं. हिंदूज अपने रिलीजन्स को फॉलो करते हैं, मुस्लिम्स अपनी रिलीजन्स फॉलो करते हैं, सिख है, क्रिश्चियंस हैं, तो लॉट ऑफ डिफरेंसेस हैं. इज इट क्लियर? इवन if there is lot of differences are there, even the people are united. उसके बाद भी लोग आपस में क्या है, बिल्कुल यूनाइटेड है. तो लोग उसके बाद भी यूनाइटेड हैं. तो what are the things that stand them together? तो वो है बेटा आपके नेशनल सिंबल्स. दैट इज देयर आर फ्यू थिंग्स, there are few things, okay, that bind this beautiful country together. national symbols हैं वो things क्या है बेटा? that is the national symbols. जिसने हमारी कंट्री को बाइंड करके रखा है वो है हमारे कंट्री के नेशनल सिंबल्स, जिसकी हम सब रिस्पेक्ट करते हैं. ठीक है, अब देखो
इंडिया एक कंट्री है, तो कैसे इतना डिफरेंस कल्चर होना, इतनी डिफरेंस रिलीजन्स होना, इतनी ज्यादा डिफरेंसेस की हमने बात कर ली, फिर भी हाउ वी आर बाइंड टुगेदर एंड हाउ वी स्टैंड टुगेदर. सो दिस इज पॉसिबल ड्यू टू नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री. और जब भी नेशनल सिंबल्स की बात आती है, एट दैट टाइम स्टूडेंट वी फॉरगेट, हम भूल जाते हैं कि वी आर बिलोंगिंग टू विच रिलीजन और विच स्टेट. वी फॉरगेट ऑल द थिंग्स. एट दैट टाइम द ओनली थिंग why we stand together, because we are Indian and this is our country. We are Indian and this is our country. So we stand together for our country. और लोगों को आपस में यूनिटी और डाइवर्सिटी इतनी होने के बाद भी यूनिटी में रखने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट, इसीलिए देखो इतनी डिफरेंसेस हैं, इसीलिए हमने नेशनल फेस्टिवल बनाया. पास्ट हिस्ट्री की ऐसी डेट्स दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस. पास्ट हिस्ट्री की वो डेट्स जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है. वी नेवर फॉरगेट दैट डेट्स. So that date is known as our national festivals. Like 15th August 1947, we get the independence from the British rule. 26th January 1950, we adopted our constitution. We adopted our constitution. And Gandhi Jayanti 2nd October, this is also our national festival, because lot of struggle for the freedom has been done by the Mahatma Gandhi. So the people belonging to any religion, they all respect Gandhi ji, and due to his motivation, the people from all region of the country, they stand together in the fight of the freedom. So we celebrate Gandhi ji birthday as a national festival. So student, these national symbols, क्योंकि जानते हो बेटा, अगर रिलीजन में आ जाएंगे तो हर कोई अपनी रिलीजन को रिस्पेक्ट करता है. ठीक है, तो बहुत सोच समझ के चीजें बनाई जाती हैं. ये नेशनल सिंबल ही है जो हमें एक संग खड़ा करते हैं, यूनाइट करके, कि हम इंडियन हैं. क्योंकि हम रिलीजन या किसी चीज को लेके नहीं, क्योंकि अगर हम कहें आपकी रिलीजन सही नहीं, वो हर कोई अपनी रिलीजन की रिस्पेक्ट करता है. ठीक है, और ऐसा आपके कॉन्स्टिट्यूशन में भी दिया है. इट इज आल्सो रिटन इन द कॉन्स्टिट्यूशन एज द राइट, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन. ये आपके कॉन्स्टिट्यूशन में आपके राइट है, फ्रीडम ऑफ द रिलीजन. आप किसी भी रिलीजन को अपना सकते हो अपने मन से, बट फोर्सफुली आपको कोई दूसरे धर्म को नहीं वो करेगा. बाय योर ओन यू कैन ज्वाइन एनी रिलीजन. दिस इज रिटन इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन आल्सो. सो एवरीवन रिस्पेक्ट देयर रिलीजन, और दूसरे लोग भी एक दूसरे की रिलीजन की रिस्पेक्ट करते हैं, है ना. सो कंट्री के लोग आपस में यूनिटी में क्यों है, इसका रीजन है नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री. इसका रीजन है नेशनल सिंबल्स ऑफ आवर कंट्री. क्योंकि जब नेशनल सिंबल की बात होती है
तो एट दैट टाइम वी फॉरगेट ऑल द थिंग्स कि हम दूसरी स्टेट के हैं, दूसरे धर्म के हैं, दूसरे रिलीजन के हैं, ये सब बातें हम भूल जाते हैं। ठीक है, सो नाउ लेट्स स्टार्ट विद द नेशनल फ्लैग। नेशनल so what does the national flag stands for? So national flag is the symbol of our freedom and unity. So national flag is the symbol of our freedom and unity। ठीक, नेशनल फ्लैग क्या है? नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम, क्योंकि नाउ आवर कंट्री इज नॉट रूल्ड बाय एनी अदर कंट्री। अब हमारी कंट्री दूसरे कंट्री का रूल नहीं हमारी कंट्री पे। इज इट क्लियर? सो नेशनल फ्लैग इज द सिंबल ऑफ आवर फ्रीडम एंड यूनिटी, क्योंकि जब भी आप फ्लैग, नेशनल फ्लैग जब भी होता है, वी स्टैंड टूगेदर अटेंशन पोजीशन में। इज इट क्लियर? सो वी ऑल सल्यूट आवर नेशनल फ्लैग एंड वी गिव रिस्पेक्ट टू आवर नेशनल फ्लैग। ठीक है, नेक्स्ट लिखो, इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट एंड ऑनर। ऑनर मीन्स होता है सम्मान करना। ठीक है, क्योंकि ये आपके कंट्री, नेशनल फ्लैग जो है ये आपकी कंट्री इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहा है। सो इट इज आवर ड्यूटी टू रिस्पेक्ट, ऑनर एंड टेक केयर ऑफ इट। इज इट क्लियर? सो पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ आल्सो। ठीक है, लोग अपनी लाइफ को भी सेक्रीफाइस कर देते हैं अपने किसके लिए? नेशनल फ्लैग के ऑनर में, रिस्पेक्ट में। दे आर रेडी टू सेक्रीफाइस देयर लाइफ आल्सो। इज इट क्लियर मैक्सिमम स्टूडेंट? आप लोग, सो यू मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ दिस नेशनल फ्लैग। ठीक है, हमें अपने नेशनल फ्लैग की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, ऑनर करना चाहिए। वी मस्ट अंडरस्टैंड द वैल्यू ऑफ आवर नेशनल फ्लैग। मैनी पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ। आप न्यूज़पेपर्स में, टीवी चैनल्स में देखते होगे, ठीक है, कि अपनी लाइफ भी सेक्रीफाइस करने के लिए लोग रेडी रहते हैं। दे हैव so much respect and honor for their country. So and now first हो गया national flag is the symbol of freedom and unity. Second, the shape of our national flag is rectangular. The Indian flag is a rectangular। ठीक है, द इंडियन फ्लैग इज ए रेक्टेंगुलर। इंडियन फ्लैग की शेप क्या है? रेक्टेंगुलर शेप है।
कल मैंने आप लोग से डिस्कस किया था, रेक्टेंगल वो होता है बेटा मैथमेटिक्स में whose opposite sides are equal, और what is the length, इसकी लेंथ है 3:2। आप इसे ऐसे समझ सकते हो, 3 लेंथ है और 2 इज द हाइट, ठीक है। 2 क्या है, उसकी हाइट है, और 3 क्या है, उसकी लेंथ है, ठीक है। सो द लेंथ ऑफ आवर नेशनल फ्लैग इज 3:2 मीन्स 3 इज द लेंथ, लंबाई में है, और 2 क्या है, हाइट है उसकी। इज इट क्लियर? क्योंकि अब हो गया, द इंडियन फ्लैग इज रेक्टेंगुलर एंड नेशनल फ्लैग इज द नेशनल फ्लैग is tricolor. You are able to see 3 colors. Okay, so you will see the national flag is tricolor. Okay, so student, now see next point, saffron color, जिसको हिंदी में हम लोग केसरिया भी बोलते हैं, बोलते हो ना केसरिया। सो सैफ्रॉन कलर एट द टॉप, सैफ्रॉन कलर क्या है बेटा, टॉप पे होता है, एट द टॉप। देन वाइट कलर इन द मिडल, white color in the middle. So white color in the middle and green color at the bottom. Green color at the bottom. Okay, now see student, when you will see your national flag is the symbol of our freedom and unity. किसका सिंबल है, हमारी फ्रीडम का है और यूनिटी का सिंबल है नेशनल फ्लैग। ओके, नाउ द इंडियन फ्लैग इज रेक्टेंगुलर, सो व्हाट इज द शेप ऑफ द इंडियन फ्लैग, दैट इज रेक्टेंगुलर शेप। कैसी शेप है इसकी, रेक्टेंगुलर शेप, एंड इट इज 3:2 मीन्स 3 इज द लेंथ, एंड क्योंकि इसे सीधा लगाते हैं, ठीक है, तो इसकी हाइट क्या है 2 ही, और लेंथ इसकी 3। द नेशनल फ्लैग इज ट्राई कलर, हाउ मेनी कलर्स यू आर एबल टू सी इन योर नेशनल फ्लैग, दैट इज 3। फर्स्ट इज द saffron color at the top, white color in the middle and green color at the bottom. और saffron color stand for sacrifice, बलिदान का प्रतीक है saffron color. Is it clear? Saffron color stands for the sacrifice for the country, जो मैं आपसे अभी बात कर रहा था
कि आप न्यूज़पेपर्स, टीवी चैनल से सब में देखते होगे, फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ आवर कंट्री एंड फॉर द रिस्पेक्ट ऑफ कंट्री पीपल सेक्रीफाइस देयर लाइफ आल्सो. दीज थिंग्स यू विल सी इन द न्यूज चैनल्स. ठीक है, लोग अपनी लाइफ तक सेक्रीफाइस कर दे रहे हैं अपने कंट्री के लिए. सो सैफ्रॉन कलर एट द टॉप एंड इट स्टैंड्स फॉर द सेक्रीफाइस. व्हाइट कलर इन द मिडल एंड व्हाइट कलर स्टैंड फॉर पीस. शांति का प्रतीक है. ठीक है, व्हाइट कलर स्टैंड फॉर द पीस, दैट इज हिंदी में आप बोलोगे शांति का प्रतीक. जैसे महात्मा गांधी, उन्होंने many years he fight against the British rule, but Gandhi ji always follow the path of non-violence. उन्होंने ब्रिटिश रूल के अगेंस्ट फाइट तो की for many years and even we get the freedom also, but the path which the Mahatma Gandhi follows is the path of freedom, is the path of non-violence. मतलब कोई खून खराबा, मार पिटाई, ये सब कुछ नहीं. ठीक है, उन्होंने बहुत से आंदोलन चलाए उस समय, लोगों को मोटिवेट किया, क्योंकि हम इंडियंस की, हमारी क्या बेटा, पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी एंड जो ब्रिटिश थे दे आर वेरी लेस. सो गांधी जी ने इस चीज को बहुत अच्छे से यूज किया उस पास टाइम में कि इतनी ज्यादा पॉपुलेशन है, थोड़े से लोग कैसे कंट्रोल कर पाएंगे. सो ही ऑलवेज फॉलो द पाथ ऑफ non-violence and many आंदोलन गांधी जी डन इन द पास्ट. पास्ट में गांधी जी ने बहुत से आंदोलन किए अगेंस्ट द ब्रिटिश पीपल फॉर द फ्रीडम स्ट्रगल. सो स्टूडेंट, व्हाइट कलर स्टैंड फॉर द पीस and your green color which is at the bottom, this green color stand for prosperity, खुशहाली का प्रतीक है. this green color stand for the prosperity, कि इंडिया के खुशहाली का प्रतीक है. कौन? ग्रीन कलर. नाउ इन द सेंटर, अगर आप सेंटर में देखोगे, इन द सेंटर ऑफ द फ्लैग यू विल सी अ नेवी ब्लू व्हील. सेंटर में यू विल सी अ व्हील एंड द कलर ऑफ द व्हील इज नेवी ब्लू. कलर ऑफ द व्हील इज navy blue and this wheel you will see in the center the अशोका चक्र. ये क्या है बेटा? अशोका चक्र है. आप कभी सारनाथ, हमेशा आप लोग लास्ट ईयर भी गए होंगे पिकनिक में सारनाथ, वहां पे आप देखना म्यूजियम में. ठीक है, जो अशोका चक्र जो है, सो जो ये यहीं से लिया हुआ है, वाराणसी से. कहां से लिया है बेटा? वाराणसी से. एंड फ्रॉम विच प्लेस? सारनाथ. सो दिस हैज बीन टेकन फ्रॉम द अशोका पिलर एंड इज द सिंबल ऑफ धर्मा. ठीक है. सो एंड वेयर इज इट? इट इज इन वाराणसी. ये कहां है? वाराणसी में. ठीक है. एंड दिस सिंबल स्टैंड फॉर द धर्मा. नाउ स्टूडेंट,
नेशनल फ्लैग एंड जो तुम्हें लाइंस जो दिखती हैं इसमें व्हील के अंदर जो ये चक्र लिया है दैट इज 24, दैट इज 24. ओके, थैंक यू स्टूडेंट.